Hello, good morning students. How are you all? I hope you have read your chapter number 21, that how UNO was formed. Okay, so let's have a quick recap what we have done in our previous session. We have discussed about what are principles, what are objectives, and that we have done with so many examples. Like one example I have given you, which is written here. One example I have given you of Mahatma Gandhi's, what was his objective and what principle he followed to achieve that objective. So here we have discussed that I want to stand first in the class, that is my aim. And what principles I am following, that I am studying regularly, or I am attentive in my class, I am giving class tests regularly. So that all are the principles that I am following to achieve my aim. So how many principles we have discussed? We have discussed 4 principles of UNO. Let's have a quick recap. First principle that we have discussed is mutual support and respect. That means all the countries should support each other and should respect each other. There should not be interference in the affairs of अदर्स कंट्री, लाइक एक कंट्री को दूसरी कंट्री के कामों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. द थर्ड प्रिंसिपल दैट वी हैव रेड इज सेटल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स. लाइक अगर छोटी मोटी कोई बात हो गई है एंड दे वांट टू सॉल्व दैट डिस्प्यूट मीन्स छोटी मोटी लड़ाई, तो दैट दे कैन डू बाय पीसफुल मीन्स, और पीसफुल तरीके से करना चाहिए. एंड द लास्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इज सपोर्ट UNO and promote peace. So that means whatever activities UNO is doing, the countries, all the countries should support UNO in all the activities that UNO is doing to promote the peace in the world. So that was the principles of UNO, and today we are going to discuss about the objectives of UNO. Yes, so now we will be discussing about the objectives of UNO. In your book, how many objectives are given? In your book, total 6 objectives are given that we are going to discuss today. So the first and the most common objective, वो तो हम सबको पता है, to promote international peace, or what you can say is the first objective is to maintain the peace worldwide. यानी कि पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखना, शांति बनाए रखना, ये किसका सबसे बड़ा काम है? UNO का. The second is to settle disputes between the member countries in a peaceful manner. एक तो हम लोगों ने प्रिंसिपल में भी सेम चीज़ पढ़ी थी, दैट द कंट्री शुड हैव दैट फीलिंग. उनके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए कि अगर कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है तो हम उसको शांति से ही ख़त्म कर दें. तो अब ये चेक रखना कि वो शांति से ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, ये किसका काम है? ये काम है UNO का. सेटल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स. दैट मीन्स हियर UNO has to keep a check that the dispute is being settled peacefully. The third is very very important, to develop friendly relations. Friendly relations का क्या मतलब होता है? मैंने जब लास्ट क्लास ली थी तो भी मैंने समझाया था कि अगर कंट्रीज़ के आपस में रिलेशंस ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या वो आपस में फ़ाइट नहीं करेंगे? क्या ये पीस मेंटेन हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है दैट all the countries should have friendly relationships. like उनके जो relationships हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या होने चाहिए? friendly कह सकते हो, या बहुत अच्छे relationships होने चाहिए. next, to promote respect for human rights एंड फ्रीडम फॉर ऑल. जैसे कि हमको ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं, है ना, गवर्नमेंट हैज़ गिवन अस सम राइट्स. सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ UNO इज टू कीप अ चेक दैट वेदर ऑल द कंट्रीज आर फॉलोइंग द ह्यूमन राइट्स
या नहीं। जैसे कि अगर कहीं किसी कंट्री में ऐसा तो नहीं हो रहा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वो अपार्थाइड, याद है, द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट स्किन पीपल एंड ब्लैक स्किन पीपल, राइट। तो इफ लाइक इन इंडिया फ्रीडम फॉर ऑल है ना, हम सबके पास फ्रीडम है, हम सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, हम सबको इक्वलिटी का एक राइट मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे मुस्लिम, चाहे कोई भी हो। इफ़ यू आर इंडियन, इफ़ यू लिव इन इंडिया, इफ़ यू हैव इंडियन सिटीजन हो आप, तो दैट मीन्स यू आर इक्वल इन द गवर्नमेंट्स आइज। दैट मीन्स आप गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल इक्वल हो, नो मैटर्स दैट यू आर अ हिंदू और यू आर अ मुस्लिम। सो ये सब चीज़ें चेक रखना किसका काम है, यूएनओ का, टू चेक दैट इन ऑल द कंट्रीज, कोई कंट्री ऐसा तो नहीं है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो या ह्यूमन राइट्स को फॉलो ना किया जा रहा हो। और अगर कोई कंट्री ऐसे मिले तो पता है यूएनओ से पनिश भी कर सकती है। The next is, okay, I skipped one, कोई बात नहीं, to ensure equal rights for the nations। अब इसमें क्या डिफरेंस है, सी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि इक्वल राइट्स किसके हैं, ह्यूमन के। कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं, द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द कंट्री, they should have equal human rights, but now I am saying a different thing, equal rights for the nations। nations के equal rights हैं या नहीं। जैसे यूएनओ का मेंबर इंडिया भी है और यूएनओ का मेंबर चाइना भी है, तो ऐसा ना हो कि चाइना को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए हों और इंडिया को कुछ कम राइट्स दिए हों। तो इट शुड ऑल्सो नॉट बी देयर, ऑल द कंट्रीज शुड ऑल्सो हैव द इक्वल राइट्स। नेशन मीन्स कंट्रीज, सो ऑल द नेशंस शुड हैव इक्वल राइट्स। The last point or the last objective of UNO which is given in your book is to help develop the world। अब देखो इसमें लिखा है to help develop the world economically, culturally and socially। अब इसका क्या मतलब है, देखो, listen to me। देखो अब फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट यूएसए और आई टॉक अबाउट some other countries like Japan, they are developed countries, but if I talk about India, you will see that India is not that developed। So what you can do in that case, who will ensure कि जो इंडिया है यहाँ पर डेवलपमेंट है या नहीं है या कैसी चल रही है, तो who will make sure this? So it is wholesale responsibility of UNO। UNO will keep a check, like इंडिया में आया, इंडिया में विजिट किया, किसने विजिट किया, यूएनओ से कौन आया, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे व्हेन वी विल रीड अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ, कि हाउ मेनी पीपल और हाउ यूएनओ वर्क, तो दैट वी विल स्टडी देयर। बट अभी के लिए फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू टू हेल्प डेवलप द वर्ल्ड। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो इंडिया से भी बहुत नीचे हैं और अभी जो बिल्कुल डेवलप स्टार्ट कर रही हैं करना, तो वहाँ पर उनकी कौन हेल्प करता है, उनकी हेल्प करता है यूएनओ। देखो लिखा इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली मीन्स इकोनॉमी को हेल्प करता है, यानी कि मनी सर्कुलेशन में हेल्प करता है कि उस कंट्री के पास ज़्यादा पैसे हों ताकि वो कंट्री डेवलप कर जाए। कल्चरली मीन्स कल्चर क्या होता है, जो हम लोग फॉलो करते हैं, कि वहाँ पर ऐसा ना हो कि वहाँ पर कल्चर ही गलत चल रहा हो। जैसे कि कुछ प्रथा हम लोगों ने पढ़ी थी ना इंडिया में जो बहुत गलत चल रही थी, जैसे सती प्रथा पढ़ी थी हम लोगों ने, इजंट इट। अनटचेबिलिटी पढ़ी थी कि ये तो अछूत है, इसको तो छूना नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी चेक करता है यूएनओ की किसी कंट्री में ऐसी चीज़ें तो नहीं फॉलो हो रही। एंड ऑल्सो सोशली, कि सोसाइटी में सेम चीज़ है कि सोसाइटी में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। सो वी हैव रेड 6 ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस और पीस वर्ल्ड वाइड। सेकेंड इज टू सेटल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। Third is develop friendly relation among the nations, and fourth is respect for the human rights. Fifth is equal rights for all the nation, and the last is to help develop the
world economically, culturally and socially. So that's all for today. Today we have discussed about the objectives. In the next class we will discuss about the organs of UNO.